I hope all of you well. Once again, I welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we will discuss about corrosion and its prevention. It's a very important topic related to electrochemistry, class 12th science. In this video, we will discuss about what is the corrosion, how can we prevent it, what is the chemistry behind it. All these things we will discuss in this video. The word corrosion is carried from the Latin verb corrode, which means to gnaw, indicating how these substances seems to gnaw their way through the flesh. कहने का सीधा सा मीनिंग है कि कोरोजन जो है वो लैटिन वर्ड कोरोड से निकला हुआ है, जिसका मीनिंग होता है डिकम्पोजिशन, एक तरह से डिकम्पोज होना. कोरोजन इज द डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल बाय केमिकल इंटररिएक्शन विथ देयर एनवायरनमेंट. कोरोजन जो होता है वो मटेरियल का डिटोरिएशन मतलब टूटना, क्षतिग्रस्त होना, खराब होना. कब? जब वो केमिकल इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ. The term corrosion is sometimes also applied to the degradation of plastic. प्लास्टिक जब डिग्रेड होता है तो उससे भी हम लोग कभी कभी corrosion कहते हैं. कंक्रीट, वुड, बट जनरली रेफर्स टू मेटल्स, लेकिन जनरली इसको मेटल के साथ जोड़ा जाता है. देयर मोस्ट वाइडली यूज मेटल इज़ आयरन. और सबसे ज़्यादा corrosion को हम लोग जो कोरिलेट करते हैं वो आयरन के साथ करते हैं, जो कि स्टील में होता है. Chemical or electrochemical reaction between a material and its environment that produces a deterioration of the material and its properties. Corrosion जो है वो क्या है? केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जो एक मटेरियल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में होती है, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है. उसे हम लोग कोरोजन कहते हैं. These are pictures which you are observing that how the corrosion occurs. Now the first case is tarnishing of silver articles with hydrogen sulfide present in water or food. This blue or black color is called tarnishing of silver. बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि सिल्वर के जो यूटेंसिल्स होते हैं या ऑर्नामेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाते हैं या ब्लू होने लग जाते हैं. दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. और क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो किस में प्रेजेंट होती है, वाटर में या फूड में, वो उसके साथ इंटररिएक्ट करती है. या बहुत सी बार इन्वायरमेंट के अंदर भी जो H2S होती है वो उसके साथ इंटररिएक्ट करती है. इन्वायरमेंट के अंदर H2S जो है वो इंडस्ट्रीज से आती है. सेकेंड एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स. कॉपर और ब्रॉन्ज के, तांबे और के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है. थर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन. तीसरा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जो जंग लगता है वो कोरोजन का एग्जांपल है. दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन. Its oxide is iron oxide, which is known as hematite. Now look at here. Suppose this is the surface of iron. The iron surface is work as anode here, and the water droplet which present on this iron surface, that is work as a cathode. And when iron comes in the contact of water, it forms hydrated ferric oxide, which is known as rust, Fe2O3.XH2O. And air helps here to provide CO2, which work as an electrolyte. So at cathode, O2 plus 4H plus plus 4 electron convert into 2H2O, or we can write here O2 plus 2H2O plus 4 electron convert into 4OH minus ion. At anode side, iron convert into Fe2 plus plus 2 electron. Rusting involve iron atoms using electrons to form ions. It occurs into two steps. Anode, first Fe convert into Fe2 plus, further Fe2 plus convert into Fe3 plus.
तो इस तरीके से एनोड के ऊपर आयरन जो होता है वो दो फेजेस में चेंज होता है, एक में Fe2+ में, दूसरे में Fe3+ में. सो फर्स्ट Fe2+ react with water and form ferrous hydroxide, which further react with water droplets and environmental oxygen convert into ferric hydroxide. The electron lost from the iron are accepted by the water and oxygen. जो आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको वाटर या ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेती है, which works as an cathode. O2+, 4H++ 4 electron convert into 2H2O, 2H2O plus O2 plus 4 electron convert into 4OH minus. This is the entire chemistry of corrosion, and the rusting of iron is based on electrochemical reaction. So electrochemistry applies here, and this forms a cell, we can say. एक तरह से सेल यहाँ पर बन जाता है, और सेल के सेटअप होने की वजह से यहाँ पर रस्टिंग स्टार्ट होती है. Why do metal corrode? Metal corrode क्यों होते हैं? Any spontaneous reaction in the universe is associated with a lowering in the free energy of the system. कोई भी spontaneous reaction जो यूनिवर्स में वो क्यों होना चाहती है? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है. All metals except the noble metals have free energies greater than their compounds. जितने भी मेटल्स होते हैं नोबल मेटल के अलावा, उनकी फ्री जो एनर्जी होती है वो उनके कंपाउंड से ज़्यादा होती है. सो दैट टेंड देयर टू बिकम देयर कंपाउंड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोरोजन. इसलिए वो अपने कंपाउंड्स में चेंज होना चाहते हैं. मेटल्स की जो फ्री एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब एंट्रोपी ज़्यादा होती है, तो अपनी एंट्रोपी को कम करने के लिए वो कंपाउंड्स बनाते हैं. और यहाँ पर वो कोरोजन के थ्रू ही क्या बना रहे हैं? कंपाउंड्स बना रहे होते हैं. यहाँ पर अगर डायग्राम देख रहे हैं आप तो देखिए, और एंट्रोपी इनपुट, सॉरी एनर्जी इनपुट, मेटल, एनर्जी लॉस, कोरोजन प्रोड्यूस. और मेटलर्जी थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल मेटल विथ कोरोजन, कोरोजन प्रोडक्ट थर्मोडाइनमिकली स्टेबल. तो कहने का मतलब कोरोजन से जो कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कोरोजन होता है. मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग इज़ फाउंड टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर. एनोड एंड कैथोड आर इन्वॉल्व. यहाँ पर एनोड जो होता है वो आयरन का होता है, कैथोड जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट होती है. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. Oxidation of iron to Fe2 occurs at anode and several reduction reactions occur at the anode. आयरन का ऑक्सीडेशन Fe से Fe2 में होता है और दूसरे बहुत सारे रिडक्शंस यहाँ पर फॉलोड अप होते हैं. At anode areas of iron, the iron is electrochemically oxidized to Fe2+ ion. आयरन पहले Fe2+ आयन में ऑक्सीडाइज होता है. इन एन ऑक्सीजन इन्वायरमेंट द Fe2 आयन इज क्विकली ऑक्सीडाइज टू Fe3 आयन. मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Fe2+ Fe3+ में चेंज हो जाता है, विच इज सब्सिक्वेंटली चेंज टू फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड फाइनली टू ए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज होने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जो हाइड्रेटेड हो जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और वो रस्ट हो जाती है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोरोजन की कोरोजन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? रिडक्शन ऑफ मेटल थिकनेस लीडिंग टू लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ. कोरोजन की वजह से मेटल की थिकनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाता है. स्ट्रक्चर फेल्योर और ब्रेकडाउन. हैजार्ड्स और इंजरीज टू पीपल अराइजिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल फेल्योर और ब्रेकडाउन. ब्रिजेस, कार्स, एयरक्राफ्ट. मतलब कोरोजन होने की वजह से कुछ ब्रीज वगैरह, ब्रीज, एयरक्राफ्ट, कार्स टूट जाते हैं तो लोग को इंजरीज हो सकती है, उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है. लॉस ऑफ टाइम इन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफाइल मेकिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट. मीनिंग जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इक्विपमेंट काम आते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है. रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ गुड्स ड्यू टू डिटीरियोरेशन ऑफ अपीयरेंस. कि कोरोजन की वजह से जो चीज़ें होती है, जो सामान है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है. कंटामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स इन वेसल्स एंड पाइप्स. जो मेटल की जो वेसल होती है, नलियाँ होती है, पाइप होते हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड बह रहा होता है, जो लिक्विड बह रहा होता है, उसमें कंटामिनेशन हो जाता है. मतलब दूसरे एलिमेंट्स आकर के मिल जाते हैं जो हैजार्डस होते हैं.
परफोरेशन ऑफ वेसल्स एंड पाइप अलाउइंग एस्केप ऑफ देयर कंटेंट्स एंड पॉसिबल हार्म टू देयर सराउंडिंग्स। मतलब किसी भी नलियों में से, पाइप में से जो भी चीज़ बह के जा रही है तो वहाँ पर उनके परफोरेशन हो जाता है, मतलब छेद हो जाते हैं कोरोजन की वजह से, जिसकी वजह से वो कंटेंट बाहर बह सकता है और वो बाहर जा कर के अपनी सराउंडिंग्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। लॉस ऑफ टेक्निकल इंपॉर्टेंट सरफेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मेटेलिक कंपोनेंट। मेटल की जो इम्पोर्टेंट सरफेस प्रॉपर्टीज होती है उसमें कमी आ सकती है। मैकेनिकल डैमेज टू वॉल, पंप्स एक्सेट्राज और ब्लॉकेज ऑफ पाइप्स बाय सॉलिड कोरोजन प्रोडक्ट्स। ओके, वॉल जो होते हैं, पंप जो होते हैं या पाइप्स के बीच में ब्लॉकेज आ सकते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट जो बरीड पाइप्स होते हैं वो सीवियर कोरोजन की कंडीशन में आ जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी खतरनाक डैमेज हो सकता है। द लोअर एज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट स्किन पैनल हैज़ सफर्ड कोरोजन ड्यू टू लीकेज एंड स्पॉइलेज फ्रॉम ए वॉश बेसिन इन द टॉयलेट। ये एयरक्राफ्ट की जो स्किन पैनल है उसका, मतलब जो लेयर है उसकी बॉडी की, वहाँ पर कोरोजन की वजह से इसमें हॉल्स हो गए हैं जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। सी वाटर इज़ हाईली कोरोसिव इलेक्ट्रोलाइट टुवार्ड्स माइल्ड स्टील। स्टील के लिए जो समुद्र का पानी होता है वो हाईली कोरोसिव इलेक्ट्रोलाइट होता है। दिस शिप हैज़ सफर्ड सीवियर डैमेज इन द एरियाज विच आर मोस्ट बफर्ड बाय वेव्स वेयर द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ पेंट हैज़ बीन लार्जली रिमूव्ड बाय मैकेनिकल एक्शन। मतलब शिप के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाई गई थी वो धीरे धीरे जब हट जाती है तो यहाँ पर कोरोजन काफ़ी फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वॉट आर द लॉसेस ऑफ ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन की वजह से क्या क्या लॉस होते हैं यहाँ पर दिखा रखा है कि किस तरह से किसी भी देश की इकोनॉमी जो जीडीपी जो होता है वो कोरोजन की वजह से अफेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉसेस ड्यू टू कोरोजन। वेस्ट ऑफ मटेरियल, इकोनॉमिक लॉस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक लॉस, डायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस, शट डाउन, लॉस ऑफ प्रोडक्ट, लॉस ऑफ एफिशिएंसी, प्रोडक्ट कंटामिनेशन एंड ओवर डिज़ाइन। तो इस स्लाइड के अंदर पूरा का पूरा दिखाया गया है कि कोरोजन किस तरह से किसी देश की, किसी कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो डाउन हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब हम लोग बात करेंगे कि कोरोजन को किस तरीके से रोका जा सकता है। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग मेटल अगेंस्ट कोरोजन। कोरोजन को रोकने के बहुत सारे मेथड्स हैं। दे आर बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, कंडीशनिंग द मेटल एंड इनहिबिटर्स। बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है? Here a thin barrier is developed between the surface of iron and atmosphere by one of the following methods। मतलब आयरन की सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में एक बैरियर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि आयरन जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ना आए। पहला, पेंटिंग द सरफेस, सरफेस पे पेंट कर दिया जाए। कोटिंग द सरफेस विद अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस, सरफेस के ऊपर ऑयल या ग्रीस की कोटिंग कर दी जाए। डेवलपिंग ए थिन लेयर ऑफ सम नॉन कोरोसिव मेटल्स लाइक निकल, क्रोमियम, कॉपर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करके एक पतली लेयर मेटल के ऊपर डेवलप कर दी जाती है जो नॉन कोरोसिव होती है। एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं निकल, क्रोमियम, कॉपर एक्सेट्रास। Sacrificial protection. Direct current power supply. This involve connecting the iron to the negative terminal of a battery or power supply. Connecting the negative terminal of a car battery to the car body slow corrosion. मतलब बैटरी की, कार की जो बैटरी होती है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको अगर हम लोग कार की बॉडी के साथ कनेक्ट कर दें तो कोरोजन जो है वो स्लो हो सकता है। मेटल हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। दिस मेथड इज स्पेशली यूज फॉर अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स। मतलब उन मेटल का इस्तेमाल किया जाए जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, और इसका इस्तेमाल जनरली वहाँ किया जाता है जहाँ पर आयरन पाइप्स को अंडरग्राउंड किया जाता है, जैसे नल, वाटर सप्लाई के पाइप हो गए, ऑयल सप्लाई के पाइप्स हुए, इनमें। हियर द आयरन पाइप और टैंक इज कनेक्टेड टू ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इसमें आयरन पाइप को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से कनेक्ट कर दिया जाता है। द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक्ट्स लाइक एनोड। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है वो एनोड की तरह वर्क करता है, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, और आयरन जो होता है वो कैथोड की तरह सप्लाई
कैथोड की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। दस आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय टर्निंग इट एज ए कैथोड, हैंस द मेथड इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो इसको हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आयरन जो है वो कैथोड का रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट, this is sacrificial protection. The last one was cathodic protection. In this case, the surface of an iron covered with a more electropositive metal like zinc or aluminium. आयरन की सरफेस को जिंक या एल्यूमिनियम से कोट कर दिया जाता है। सिंस दिस मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडली देन आयरन, क्योंकि ये मेटल जो होते हैं वो आयरन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से लॉस करते हैं। रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, तो रस्टिंग रुक जाती है। एज लॉन्ग एज मेटल इज प्रेजेंट आयरन डज नॉट गेट रस्टेड, जब तक वो मेटल प्रेजेंट रहेगा तब तक आयरन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, आयरन का कोरोजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो उसे हम लोग सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये स्टील पाइप को एमजी के साथ जोड़ दिया गया है अंडरग्राउंड में। तो यहाँ पर एमजी जो है वो एनोड का वर्क करेगा और जो स्टील जो है वो अब कैथोड का, स्टील के अंदर जो आयरन है वो कैथोड का रोल प्ले करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सेल जो है वो पहले जो आयरन एनोड था अब उसकी जगह वो कैथोड में चेंज हो गया है, इसलिए रस्टिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और जैसे जैसे मैग्नीशियम डिकम्पोज होता है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। बाय रिटार्डिंग आइदर द एनोड और कैथोडिक रिएक्शन द रेट ऑफ केरोसिन कैन बी रिड्यूस्ड। अगर हम लोग एनोड या कैथोड की रिएक्शन को की स्पीड को कम कर दें तो भी हम लोग यहाँ कोरोजन को रोक सकते हैं। दिस कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू मेन ग्रुप्स, दो तरीके से रोक सकते हैं। कोटिंग द मेटल, अलोइंग द मेटल, या तो मेटल को कोट कर दिया जाए या फिर मेटल का अलॉय बना दिया जाए। कोटिंग द मेटल, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग इज मेड बिटवीन मेटल एंड एनवायरनमेंट। कोरोजन को रोकने के लिए मेटल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब जो बैरियर की तरह वर्क करता है। एग्जाम्पल, हॉट डिपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, thermal spraying and organic coatings. In very low concentration of the surface of a metal that is exposed to a corrosive environment that terminates or diminishes the corrosion of metal. These are also known as side blocking elements, blocking species or adsorption side blockers due to the adsorptive properties inhibitor function by adsorption of ions और मॉलिक्यूल्स ऑन मेटल सरफेस। कहने का सीधा सा मीनिंग है, मेटल सरफेस के ऊपर अगर हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जो उसकी रिएक्शन को स्लो कर देते हैं तो उससे भी हम लोग इस कोरोजन को रोक सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको पता ही है। So I hope you have understand what is the meaning of corrosion, what are the example of corrosion, and in which manner we can prevent the corrosion. So all these things we have studied. I hope you have understand all these things. Thank you so much.